Hello students, I am Raunak Afroz. Hope you all are fit and fine at your homes. Today we are going to start a fresh chapter, a new chapter, chapter number 5, The World in a Wall. And this chapter, this story is written by Gerald Durrel. And today we will know something about this author, author of the story. Gerald Durrell, popularly known as Zeri, was a naturalist, author, conservationist, and television presenter. He founded the Durrell Wildlife Conservation Trust and Durrell Wildlife, formerly known as the Jersey Zoological Park, on the Channel Island of Jersey in 1958. He is best remembered for writing a number of books based on his life as an animal collector and enthusiast. His first book, The Overloaded Ark, was published in 1953. He eventually wrote 33 books, including the best-selling The Buffet Bagels, A Zoo in My Luggage, Catch Me a Globus, and The Stationary Ark. So students, the most important thing to know about Gerald Durrell, okay, the most important thing to know about Gerald Durrell is that he was very interested about animals' life and wildlife, and most of his books are related to animals or wildlife. उन्होंने जितनी किताबें लिखी हैं वो ज़्यादातर रिलेटेड है वाइल्ड लाइफ से या फिर एनिमल्स क्रिएचर से. वो एनिमल लवर्स थे. वो देखिए आपकी बुक में दिया हुआ है पॉपुलरली नोन एज जेरी. वो फेमस रहे हैं जेरी के नाम से. और वो एक नेचुरलिस्ट मीन्स होता है प्रकृतिवादी. ऑथर लेखक. कंजर्वेशनिस्ट कहते हैं बच्चों, हिंदी में कहते हैं संरक्षणवादी. तो इट्स मीन अ पर्सन हु एडवोकेट्स और एक्ट्स फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ. जो इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ के प्रिजर्वेशन के लिए जो पर्सन काम करता है उसको कहते हैं हम लोग कंजर्वेशनिस्ट, संरक्षणवादी. तो वो वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा एंथुजियास्ट थे. एंथुजियास्ट, देखो एक वर्ड आया, बहुत अच्छा वर्ड है ये एंथुजियास्ट. वो बहुत ज़्यादा, हिंदी में कहते हैं इसको उत्साही. मीन्स अ पर्सन हु इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन अ पर्टिकुलर एक्टिविटी और सब्जेक्ट. जो किसी काम को करने में, किसी चीज़ से, किसी बात से किसी को बहुत क्या होता है, उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने, बहुत उत्साह से वो पार्टिसिपेट करता है, बहुत खुशी से, बहुत हैप्पीली काम करना चाहता है उस चीज़ में, उस टॉपिक पे, उस वर्क में, जो भी उसका फेवरेट फील्ड है. तो वहाँ हमारा एक वर्ड आता है एंथुजियास्ट. तो ये क्या थे, एनिमल लवर थे. और उनकी बुक्स भी जो हैं इन्हीं वाइल्ड लाइफ, एनिमल्स और वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड हैं या फिर किसी एनिमल से रिलेटेड हैं. वो इस तरह के पर्सन थे जो, और देखो यहाँ ये भी आया हुआ है कि ही फाउंडेड द डरेल वाइल्ड लाइफ. उन्होंने स्थापित किया था डरेल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट एंड डरेल वाइल्ड लाइफ, जिसको पहले जर्सी जूलॉजिकल पार्क के नाम से जाना जाता था. तो थ्रू दिस पैराग्राफ वी आर नोइंग दैट he was very interested, he was lover of animals, he was very interested about animal life and wildlife. Most of his books are related to the animals and wildlife especially. Okay, and now we will start this story, The World in a Wall. This is very interesting story about a creature. आगे हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे. Okay, let's start. So students, now we will start the lesson, and in this chapter Durrell is talking about an incident of his life that he had with an scorpion. See the story now. World in a Wall. One day I found a fat female scorpion in the wall, wearing what at first glance appeared to be a pale fawn fur coat. Closer inspection proved that this strange garment was made up of a mass of tiny babies clinging to the mother's back. I was enraptured by this family, and I made up my mind to smuggle them into the house and up to my bedroom so that I might keep them and watch them grow up.
Durrell is saying that one day he was roaming around in his garden and he found a female scorpion in the wall. वो बताते हैं कि एक दिन मैं टहल रहा था और मैं एक दिन मैंने वॉल में अपने अपने गार्डन में, उन्होंने जब वो टहल रहे थे तो गार्डन में वो देखते हैं कि एक फ़ीमेल स्कॉर्पियन को देखते हैं जो वियरिंग वॉट एट फर्स्ट ग्लांस, जो अचानक से मतलब पहली नज़र में अचानक से क्विक लुक कहते हैं, फर्स्ट ग्लांस मीन्स होता है अ क्विक लुक। तो क्विक लुक जब मैंने उस झटके से अचानक में देखा तो मुझे ऐसा लगा कि वो पहने हुए है अ पेल फॉन फर कोट। पेल मीन्स होता है बच्चों लाइट कलर, फॉन आप कह सकते हो येलोइश ब्राउन कलर। तो लाइट हल्के पीले रंग का वो फर का कोट पहने हुए से मुझे लगा। क्लोजर इंस्पेक्शन प्रूव दैट, जब मैंने क्लोजर इंस्पेक्शन मैंने करीब से जब मैंने उसको देखा, करीब से उसको जाना समझा जांच किया उसका, तो मुझे तो प्रूव हुआ, तो मुझे पता चला कि ये जो स्ट्रेंज गारमेंट जो है, जो उसका विचित्र ड्रेस जो था, वह एक्चुअली में बना हुआ था अ मैस ऑफ टाइनी बेबीज क्लिंगिंग टू द मदर्स बैक। वो जो स्ट्रेंज कोट मुझे महसूस हुआ, जो मैं स्ट्रेंज कोट जिसको मैं समझा, वह एक्चुअली में क्या था, मैस ऑफ यानी कि लार्ज नंबर ऑफ, बहुत ही ज़्यादा संख्या में छोटे छोटे टाइनी छोटे छोटे बेबीज़ जो थे, जो क्लिंगिंग आप कह सकते हो कि किस चीज़ को बहुत टाइटली, किस चीज़ को पकड़ के रखना। तो वो बेबीज़ ऐसे मदर्स के बैग से चिपके हुए थे, पकड़े हुए थे कि लग रहा था जैसे वो फर कोट हो। आप यहाँ फिगर में भी देख सकते हो हाउ द टाइनी बेबीज़ आर क्लिंगिंग हियर, किस तरह से चिपके हुए हैं छोटे छोटे स्कॉर्पियन के बेबीज़ जो होते हैं वो इसमें। तो एक बार में अचानक से वो जब उन्होंने झटके से देखा स्कॉर्पियन को तो उनको ऐसा लगा कि ये कोई फर कोट हो। ओके, और उन्होंने इस फैमिली से आई वॉज इनरेप्चर्ड मीन्स होता है डिलाइटेड, मैं बहुत ही डिलाइटेड, बहुत ही हैप्पी हो गया, मैं बहुत ही भाव विभोर हो गया, आप कह सकते हो कि बहुत उत्साही हुआ, बहुत भाव विभोर हो गया इस फैमिली को देख करके, और मैंने अपना मन बना लिया कि मैं इसको स्मगल करूँगा, यानी कि टू टेक समथिंग सीक्रेटली टू अ प्लेस, किस चीज़ को चुपके से कहीं किसी स्थान पर किसी जगह पर ले जाना। तो ऐसा कहते हैं मैं इसको चुपके से ले जाऊंगा, कहाँ पर, अपने घर में, स्पेशली कहाँ पर, अपने बेडरूम में। सो दैट, वो क्यों ले जाना चाहते थे अपने बेडरूम में, अपने घर के अंदर, ताकि वो देख सके किस तरह से ये ग्रो करते हैं, इसके जो बेबीज़ थे स्कॉर्पियन के कैसे धीरे धीरे ग्रो करते हैं, वो ये देखना चाहते थे। सो With infinite care, I maneuvered the mother and family into a matchbox and then hurried to the villa. It was rather unfortunate that just as I entered the door that I might keep them and watch them grow up. With infinite care, I maneuvered the mother and family into a matchbox and then hurried to the villa. It was rather unfortunate that just as I entered the door, lunch should be served. However, I placed the विथ इन्फिनिट केयर, यानी इन्फिनिट कहते हैं अनंत, यानी कि लिमिटलेस आप कह सकते हो, लिमिटलेस मैंने बहुत ही ज़्यादा, बहुत अनंत सावधानी के साथ, आई मैनोवर्ड मीन्स होता है मूव क्विकली, बहुत ही सावधानी के साथ मैंने क्या किया, मदर को और फैमिली को यानी कि उसके बच्चों को एक मैच बॉक्स में बहुत ही सावधानी से सेट किया, एक मैच बॉक्स में, एंड देन हरी टू द विला। विला कहते हैं बड़े से घर को, ठीक है, महल जैसा जो घर हो उसको कहते हैं विला। तो मैं अपने घर की तरफ, उनका घर जो था, अपने घर की तरफ मैंने हरी यानी कि मैंने जल्दी किया अपने घर की तरफ जाने के लिए। आई वॉज रैदर अनफॉर्चुनेट, मैं मतलब आप कह सकते हो कि थोड़ा सा दुर्भाग्य ही था ये, कि जब मैं एंट्री किया घर के अंदर दरवाजे पर, तो मैंने देखा कि लंच टाइम हो चुका था, लंच सर्व किया जा रहा था, यानी कि लंच का ये टाइमिंग हो रखी थी। ये दुर्भाग्य ही है कि मुझे वहीं पर रुकना पड़ा लंच, क्योंकि लंच का टाइम हो चुका था और सब लोग लंच टेबल पर आ चुके थे। सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। However, I placed the matchbox carefully on the mantelpiece in the drawing room so that the scorpion should get plenty of air, and made my way to the dining room and joined the family for the meal. Dawdling over my food, feeding Roger surreptitiously under the table, and listening to the family arguing,
I completely forgot about my exciting new captors. At last Larry, having finished, picked up the matchbox he had brought. Oblivious of my impending doom, I watched him interestedly as, still talking glibly, he opened the matchbox. So see students, what's there in this paragraph? However means किसी तरह से मैंने मैच बॉक्स को बहुत ही केयरफुली, बहुत ही सावधानी के साथ मेंटल पीस बच्चों कहते हैं और शेल्फ अबव अ फायर प्लेस की जो अंगीठी होती है, जो विला, जो लग्जूरियस हाउस होते हैं उसमें जो अंगीठी बनी होती है उसके चारों तरफ बने हुए जो बनावट होते हैं उसको ऊपर शेल्फ टाइप का कुछ बना होता है, उस पर कुछ चीज़ें रखी जा सकती हैं, उसको मेंटल पीस कहते हैं। तो उस मेंटल पीस के ऊपर उन्होंने ड्राइंग रूम में जो मेंटल पीस था उसे बहुत ही सावधानी के साथ किसी तरह से उन्हें मैच बॉक्स को रखा, सो दैट द स्कॉर्पियन शुड गेट प्लेंटी ऑफ एयर, जिससे कि स्कॉर्पियंस जो थे पूरी तरीके से भरपूर हवा पा सकें। एंड मेड माई वे टू द डाइनिंग रूम एंड ज्वाइन द फैमिली फॉर द मील। और उसके बाद मैंने अपना रुख अपने डाइनिंग रूम की तरफ किया ताकि अपने परिवार के साथ मैं खाने पर उनको ज्वाइन कर सकूं। जॉर्लिंग ओवर माई फूड। जॉर्लिंग मीन्स वेस्टिंग टाइम, यानी कि अपने खाने पर अपना समय बर्बाद करते हुए, साथ ही साथ फीडिंग रॉजर। बच्चों चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने रॉजर, लैरी, मार्गो और भी बहुत सारे इसमें कैरेक्टर आएंगे जिनके बारे में हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। मैंने आप लोगों को टास्क भी दिया था कि अबाउट द कैरेक्टर यू ऑल हैव टू लर्न। तो आप लोगों ने वहाँ से सीखा होगा, सबको जाना होगा। तो रॉजर यहाँ कौन है? रॉजर इस फैमिली का डॉग है। तो डॉडलिंग ओवर माई फूड, अपने खाने पर अपना समय बर्बाद करते हुए, साथ ही साथ फीडिंग रॉजर सरप्टिशसली मीन्स होता है बच्चों सिक्रेटिवली, यानी कि चुपके से, छुप करके रॉजर को वो अंडर द टेबल एंड लिसनिंग अंडर द टेबल के नीचे से रॉजर को वो खाना खिला रहे हैं। ठीक है, इस समय मतलब इस कुछ चीज़ों में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, जैसे कि अपने खाने पर रॉजर को छुप कर खिलाते हुए, साथ ही साथ लिसनिंग टू द फैमिली आर्ग्यूइंग, अपनी फैमिली को तर्क वितर्क करते हुए सुन रहे हैं। इस समय वो अपना समय बर्बाद करते हुए पूरी तरीके से आई कम्प्लीटली फॉरगॉट अबाउट माई, वो पूरी तरह से अपने उस न्यू कैप्चर्स के बारे में पूरी तरह से भूल जाते हैं। मीन समहाउ ही फॉरगॉट अबाउट द न्यू एक्साइटिंग थिंग, जो अभी उन्होंने मैच बॉक्स में सिक्रेटिवली छुपा के रखा हुआ था, तो उसके बारे में वो कम्प्लीटली भूल जाते हैं इन्हीं सबों के चक्कर में, खाने पर समय बर्बाद करते हुए, रोज़र को खिलाते हुए नीचे टेबल के नीचे से, अपने फैमिली के आर्ग्यूमेंट को सुनते हुए, अपने वो उस स्कॉर्पियन के बारे में पूरी तरह से भूल जाते हैं। एट लास्ट लैरी हैविंग फिनिश्ड, और सबसे लास्ट में क्या होता है कि लैरी फिनिश्ड करता है जब अपना खाना। लैरी कौन है? जेरी का बड़ा भाई, यानी कि जो ऑथर जिन्होंने ये स्टोरी नरेट की है उनके बड़े भाई थे लैरी। तो लैरी जब खाना अपना फिनिश कर लेते हैं तो क्या करते हैं? पिक करते हैं मैच बॉक्स को उठाते हैं। ही हैड ब्रॉट ऑब्वियस ऑफ माई इम्पेंडिंग डूम। बच्चों नाउ सी क्या हो रहा है। ऑब्वियस मीन्स होता है नॉट अवेयर, यानी कि नॉट अवेयर ऑफ माई इम्पेंडिंग डूम। इम्पेंडिंग कहते हैं अबाउट टू हैपन, डूम कहते हैं यू नो वेरी वेल टेरिबल फैट, प्रलय, यानी कि मैं पूरी तरह से अनजान था किस चीज़ से? इम्पेंडिंग डूम, आने वाली जो अभी बहुत ही टेरिबल घटना मेरे घर में होने वाली थी, जो एक तरह से आप प्रलय कह सकते हो, घर में होने वाली थी, उससे मैं पूरी तरीके से अनजान, मैं बहुत ही इंटरेस्ट के साथ मैं देख रहा था। स्टिल टॉकिंग ग्लिबली कि मीन्स अपने धारा प्रवाह में बातें करते हुए मैं लैरी को मैच बॉक्स ओपन करते हुए देख रहा था, लेकिन चूँकि मैं भूल गया था उस क्रिएचर के बारे में, इसलिए मेरा ध्यान वहाँ गया ही नहीं कि क्या होने वाला है, किस तरह का टेरिबल जो इंसिडेंट मेरे घर में अभी घटने वाला है, उस चीज़ से वो बेखबर, उस चीज़ से वो अनजान थे और बहुत ही अपने धारा प्रवाह में सब बातें करते हुए बातें सुन रहे थे और ये सब चीज़ें देख रहे थे। Now I maintain to this day
that the female scorpion meant no harm. She was agitated and a trifle annoyed at being shut up in a matchbox for so long, and so she seized the first opportunity to escape. She hoisted herself out of the box with great rapidity, her babies clinging on desperately, and scuttled onto the back of Larry's hand. There, not quite certain what to do next, she paused, her sting curved up at the ready. Larry, feeling the movement of her claws, glanced down to see what it was, and from that moment things got increasingly confused. Students, you need to match lines from your book. It is page number 45. Here Jerry is saying that now I maintain to this day that the female scorpion meant no harm. यहाँ जेरी बताते हैं कि मैंने उस दिन जाना जो ये फीमेल स्कॉर्पियन होती हैं वो किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सकती हैं. शी वॉज एजिटेटेड. एजिटेटेड मीन्स ट्रबल एंड नर्वस कह सकते हो. शी वॉज थोड़ी सी वो नर्वस थी, घबराई हुई थी, परेशानी में थी. और ट्राइफल एनॉयड. ट्राइफल मीन्स होता है बच्चों और लिटिल, यानी कि थोड़ा सा. अनॉयड गुस्सा थी, नाराज़ थी. एंग्री थोड़ी सी वो नाराज़ भी लग रही थी. एट बीइंग शट अप इन अ मैच बॉक्स फॉर सो लॉन्ग, मतलब कि लंबे समय तक वो मैच बॉक्स के अंदर बंद रहने की वजह से थोड़ी सी वो घबराई हुई, थोड़ी सी परेशानी में थी और थोड़ी अनॉयड, थोड़ी नाराज़ भी थी. एंड सो शी सीज्ड, और इसलिए उसने सीज मतलब टेक एडवांटेज कह सकते हो, जब्त कर लेना इसका हिंदी मीन होता है. उसने जब्त कर लिया, मतलब उसने एडवांटेज फ़ायदा उठाया. किस चीज़ से? द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू एस्केप, उसके बचने का जो पहला ये मौका उसको मिला, उसने उस तुरंत उसको लपक लिया. और शी हॉस्टेड यानी कि उसने खुद को लिफ्ट किया. हर सेल्फ आउट ऑफ द बॉक्स विद ग्रेट रैपिडिटी. उसने बहुत ही तेज़ी से खुद को उस बॉक्स के बाहर निकाला. हर बेबीज़ क्लिंगिंग ऑन डेस्परेटली, और उसके जो बेबीज़ थे उसको बहुत ही डेस्परेटली क्लिंगिंग, बहुत ही उसको पकड़े हुए थे कस करके. ठीक है. एंड स्कटल्ड ऑन द बैक ऑफ लैरीज हैंड, और इस तरह से वो स्कटल्ड मीन्स मूव्ड क्विकली, बहुत ही तेज़ी से वो मूव कर गई. कहाँ पर? बैक ऑफ लैरीज हैंड, लैरी के हाथों पर. देयर नॉट क्वाइट सर्टेन व्हाट टू डू नेक्स्ट, और जब वो हाथ पे वो मूव कर जाती है तो कुछ देर के लिए वो पॉज रुकती है, क्योंकि उस समझ में नहीं आता है कि मुझे क्या करना है. हर स्टिंग कर्ड अप एट द रेडी, और फिर वो चलना स्टार्ट कर देती है. लैरी फीलिंग द मूवमेंट ऑफ हर क्लॉज, और लैरी को उसके चलने की वजह से उसके हर क्लॉज, उसके जो फुट थे, जो उसके पैर थे, उसके चलने के जो मूवमेंट थे वो लैरी ने फील किया. ग्लांस डाउन टू सी, और ग्लांस डाउन यानी नीचे की तरफ उसने देखा. टू सी देखने के लिए. व्हाट इट वाज कि ये क्या है, ये क्या था. एंड फ्रॉम दैट मोमेंट थिंग्स गॉट इंक्रीजिंगली कन्फ्यूज्ड, और इसके बाद ही जो चीज़ें जो थी, चीज़ों का जो कन्फ्यूज़न था वो बढ़ता ही गया. ठीक है. आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जब लैरी देखता है कि ये तो एक स्कॉर्पियन है, कि ये बिच्छू है, तो उसके बाद चीज़ें किस तरह से उस घर में, एक तरह से आप कह सकते हो कि जैसे पीछे हम लोगों ने पढ़ा था इम्पेंडिंग डूम, तो जो एक घर जो है बिल्कुल जैसे लगा कि प्रलय आ गया हो, इस तरह की इंसिडेंट, इस तरह का घर मतलब स्थिति वहाँ हो गई थी. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. वी विल डू नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो. ओके. हाँ, थोड़ा सा ये चैप्टर बड़ा है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, आप लोग अपने बुक से मैच करते हुए स्टोरी को समझोगे. ऐसा नहीं कि बस वीडियो देख लिया और समझ लिया. ओके. बुक्स ओपन करेंगे आप लोग, वर्ड्स जो मीनिंग है उसको नोट करेंगे और अच्छे से स्टोरी को समझेंगे. ओके. हैव अ नाइस डे.